तब से मैं देख रहा हूँ जो भी फुटबॉल इंडिया में जितना बढ़ रहा है, इट्स क्रेजी। क्योंकि जो मैं पहले जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो मुझे खुद नहीं यकीन था कि इतना मतलब बढ़ सकता है फुटबॉल। मैंने भी शौक के लिए खेला था, मुझे नहीं पता था कि भाई मतलब फुटबॉल में को एक करियर मिल जाएगा। करेक्ट। मैं तो मजे के लिए खेलता था, भाई खेलता था, भाई का नाम था स्कूल में, हाँ भाई पॉपुलर है, मैंने चला भाई मैं भी खेलता हूँ। बट थिंग्स चेंज और आज मतलब आई एम टेकिंग फुटबॉल एज अ करियर। और Yeah, आगे के टाइम yeah. No, no, this is really interesting. I just want to know, अनिरुद्ध, कि भाई को कैसे लग रहा है कि भाई नाम था उसका स्कूल में फुटबॉल पे और फिर छोटा भाई जाके किल कर रहा है, इंडिया के लिए खेल रहा है, चेन्नई के लिए खेल रहा है और फुटबॉल करियर बना दिया उसने. Is your brother better than you? या ही वाज बेटर देन मी टू बी ऑनेस्ट, वो मेरे से काफी अच्छा खेलता था। हाँ. और जब मैंने मतलब स्टार्ट किया था ना खेलना, तो जब मैं मतलब आई वेंट टू द हॉस्टल इसी के लिए कि मतलब वहां पे खेलने को मिलेगा, पढ़ने को, तो ही वाज लाइक भाई वापस मत आना, फुटबॉल खेलो, वापस मत आना, वरना कभी नहीं ये खेल पाओगे, नहीं तो पढ़ने में घुसे रहोगे, नहीं निकल पाओगे कभी। तो ही वाज लाइक, वो खुश भी था और दुखी भी था कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तक पढ़ रहा हूँ, मैं 25 साल तक मैं पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। उसके साथ साथ मतलब वो काफी मेरे को सपोर्ट मिला, कि एक था घर में कि भाई वापस नहीं आना नहीं तो फंस जाएगा। You know what this story is? This is the story of Kolo Toure and Yaya Toure, where Kolo Toure first came on the scene and everyone was like, अरे कितना बाप प्लेयर है, और फिर कोलो बोलता है नहीं नहीं मेरा मेरा भाई आ रहा है, रुक रुक। फिर कोलो टूरे मास्टर्स डिग्री के लिए चला गया। All right, hello, good evening, good day, good morning. I don't care what time you're watching. Welcome to 4 Two. Venkatesh Prasad OP. OP. Kautuk does this very badly. It's यार. almost forced. मेरे को नहीं करना है वेंकटेश प्रसाद, क्यों कर रहे हैं हम लोग? Okay, so this is a very special series of videos that we're doing, and this is the first of hopefully many videos that we will be doing about something that we've really needed to talk about, wanted to talk about, and I think we talk a lot about all our leagues, our favorite leagues, the EPL, the La Liga, and the Kachra leagues as well. But I feel that it's time that we spoke about the ISL and spoke about Indian football and Yes. like the grassroots of India. So have we And I thought think of it's a more name? of a, it's also more of a responsibility, and also know that in this department, we don't know as much as most of the people out there. So Yes. please bear with us. We're doing our best. Yes, like we we don't are have a trying to name. be football woke. You know what I'm saying? Yeah. Like, we want to be learning every day. Socially responsible Football citizens. fans. Yeah. 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 We can call it straight. If it's India, we can do 4-4-2, dude. 4-4-2. 4-4-2. Amazing. बाप. Superb. 4-4-2, dude. यार नया Hey. logo बनाना पड़ेगा इसका. All right. On that note, we have with us our first guest for today. I'm delighted to announce that we have one of India's most promising young players. He plays for Chennai and FC. Can we have, with a huge round of OPs, even though this is not a live recording, can we please welcome to 442 to 442 Anirudh Thapa? Yay. Yay. OP. There you go. Nice. Superb. Anirudh Welcome, has Anirudh. come fully from kit. Have you actually, I just wanted to ask, did you actually come like from training? No bhai, नहीं. not just got prepared for it. Okay. So really quickly, you're in Goa. The tournament this year is apparently in Goa and stuff. So what's the bio bubble bandobast? Like what? How are we? Is it like, are you all not allowed to intermingle? You all are all in different hotels and things like that. No. भाई बहुत बुरा हाल है होटल में बैठे, इससे बुरा क्या हो सकता है? Correct. We can't go out, we can't go out, we can't meet anyone. The people who are working here, those who are helping us, they are also in the bubble. तो उनकी भी वाट लग चुकी है, वो भी हमको गालियां दे रहे होंगे गंदी कि भाई तुम्हारी वजह से हम भी नहीं जा पा रहे हैं. But obviously it is for our safety, ताकि लीग को कुछ प्रॉब्लम ना होए. But बहुत सच में, to be honest, बहुत बुरा हाल है. Yeah. Hey, Goa but, में रह के बाहर नहीं जाना. It sounds only painful. Yeah, but Anirudh, just remember that it didn't stop Mason Greenwood, okay, and it shouldn't stop you.
No! God, please, no! No! Okay, Anirudh, so you've had a very interesting journey. You've been with Chennai for 5 years now, is it? Yes. 5 years. So, obviously, I was reading an article which said that being a part of the AIFF Elite Academy is something that really helped you and groomed you to sort of take that step and make it to the next level and adapt to life at an ISL club. So, I wanted to know कि ये AIFF Elite Academy, like, what is that exactly? How does that work? And like, how do you, for instance, get scouted if somebody who is an aspiring footballer wants to be a part of this loco? Like, क्या कैसे होता है, क्या procedure होता है, and what is the academy like? So AIFF Academy is basically the All Indian Football Federation. It is AIFF is All Indian Football Federation, जो फुटबॉल की फेडरेशन है. तो they started a program, you know, कि we will build our own academy where we can develop a player, और वही player हम आगे जाके use कर सकते हैं national teams में, और फिर they can, you know, they can take these players to the clubs. Right. Correct. So and how I got selected was मेरे ही जहाँ से मैं हूँ देहरादून से, वहाँ पर ओपन ट्रायल्स हुए थे, तो मैं वहाँ से सिलेक्ट हुआ एंड फ्रॉम देयर यू नो माय जर्नी स्टार्टेड. बट अगर प्लेयर्स यू नो अगर उनको सिलेक्ट होना है यहाँ पर, तो दे आर मेनी टूर्नामेंट्स, लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, कोचेस, दे आर मेनी स्काउट्स देयर जो यू नो यंग प्लेयर्स को लेते हैं, यूथ लीग्स होती हैं, अंडर 13, अंडर 14. तो ये लोग जो भी स्काउट्स होते हैं, जो भी कोचेस होते हैं, वो लोग वहाँ से प्लेयर्स लेके आते हैं, दे गिव इट अ चांस कि हाँ भाई प्लेयर्स को एक चांस देना चाहिए, और फिर वहाँ से प्लेयर्स AIFF अकेडमी में जाते हैं, लाइक 50 और से 30 प्लेयर्स, और वहाँ से वो लोग प्लेयर्स को डेवलप करते हैं. एंड प्लस इंडियन टीम के टूर्नामेंट्स होते हैं, अंडर 13 टीम नेशनल टीम खेलती है, 14 खेलती है, तो दे हैव अ सेटअप कि वी हैव अ बंच ऑफ प्लेयर्स, एंड इफ वी कुड गेट यू नो अदर प्लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑल ओवर इंडिया, दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर देम. Correct. And ये academy है कैसा? Like, what is in the academy? Is it just lots of like training regimes and things like that? Like, do you play with clubs from other countries? Do you like is there different kind of coaching? Like, क्या है? Like, क्या is it like one central place where you go कि ये academy है, मुझे यहाँ पर रहना है? Like, that's what I wanted to understand. Yes, central place है, जैसे गोवा में है, then they had in Kolkata, Mumbai. So before when I was there, there were 3: Kolkata, Mumbai and Goa. Okay. And वहाँ पर एक जगह में रहना है सबको. They training है, the top coaches होते हैं इंडिया के. They are licensed, they are pro licensed coaches. So they coach the players, और वहीं से obviously players होते हैं जो 13 years, 14 years के होते हैं, उनका school होता है. So they provide that also. If you know the player can't go back home, so they provide that. And exposure trips होते हैं बाहर tournament से पहले, where they go, you know, play with bigger teams, better teams, ताकि उनको थोड़ा experience मिले. So these are the things, you know, वहाँ पर एक academy is जो कंपेयर नहीं कर सकते. ऑब्वियसली बाहर का सेटअप अलग है, इंडिया का अलग है, बट ये सेटअप काफी अच्छा है एक प्लेयर को डेवलप करने के लिए. अच्छा, like for instance you had gone, sorry Kautuk, आप गए थे, you had gone to FC Metz if I'm not wrong, you had gone to France. So at what age and how was that experience? I went when I was like 17, 18. और वहाँ पर like I went for 3 months, then I came back and again 3 months. अच्छा, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था मेरे लिए, बहुत, मतलब क्योंकि वहाँ का फुटबॉल इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट. Like, why do you say that? Like, in what sense is it very different? They are really fast. Honestly, Case जब abuse. मैं वहाँ गया तो जो 13 साल का बच्चा था, मैं उससे भी छोटा दिख रहा था. Oh wow. तो वो भी एक टाइम के लिए कंफ्यूज हो गए कि भाई आप पहले जब एयरपोर्ट में गए हम, we were like alone, we were three players. तो उन्होंने पूछा कि काहे के लिए आए हो, so we had a letter, मतलब फुटबॉल खेलने आए हैं. तो कहते 18, कहते you don't look like footballers, you look like some musician. तो नॉर्थ ईस्ट के थे, मैं अकेला. तो उन्होंने बोला कपड़े भी वैसे, तो हमने बोला यार म्यूजिशियन तो गाना भी नहीं आता हमें, गलती से पूछ दिया तो मुश्किल हो जाएगी. बट फिर उन्होंने But profile होना है तो musician is a pretty good profile. अच्छा दिखता है यार. बट वहाँ पे फिर उन्होंने कॉल किया, they were like okay you go. वहाँ गए, वहाँ का उनका सेटअप देखा, was really good. प्लेयर्स देखे,
तो वहाँ पे थोड़ी हमारी फिर फटी, हमने बोला यार ये तो मतलब गलत है यहाँ पर बच्चे समझेंगे, हाइट में भी छोटे, बॉडी में भी छोटी, तो करें क्या? बोला चलो कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। बट नेक्स्ट डे जब ट्रेनिंग में आए तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वी वर लैकिंग समवेयर, नहीं, वी वर प्रीटी गुड, बट ये था दे वर रियली क्विक, क्योंकि जो चीज हम 16 साल में सीख रहे हैं वो 8 साल में सीख रहे हैं, 9 साल में सीख रहे हैं। तो So by quick, do you mean like pace quick or like they're thinking quicker? एवरीथिंग दे वर क्विक। अब हमारा क्या है, इंडिया में भाई पढ़ना है, 5 साल का बच्चा चलो स्कूल में, 6 साल का स्कूल में, अगर ये चीज हम फुटबॉल में करें Right. तो ऑब्वियसली डेवलप करेगा। Right. Basically, parental pressure should be put in football. Correct. That should be the thing. If you are a footballer. बट एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो सब कुछ करे, Right. तो उसका मन कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप 5 साल का हो तो भाई नहीं पढ़ने भेजना है, Correct. ये नहीं होना चाहिए ना। भैया बच्चा मान लो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, Correct. ही इज गुड इन स्पोर्ट्स, आपको थोड़ी पता है वो किसमें अच्छा है किसमें नहीं है, Correct. तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, भाई तू सब कुछ ट्राई कर। एक एज है 5th तक, 5th 6th 7th मैक्स 10th, उसको पता लग जाएगा कि हाँ भाई मेरे को ये चीज करना है, उसको पता। एंड नाउ डेज चिल्ड्रन आर प्रीटी स्मार्ट, That's उसको true. पता लग जाएगा कि भाई मेरे को ये करना है, मेरे को इस चीज को, मेरे को ये पसंद है, और पेरेंट्स भी समझ जाएंगे कि हाँ भाई इस चीज में अच्छा है। Right. तो अगर वो चीज हम जितना जल्दी पकड़ सकें एक बच्चे में, उतना ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होंगी। सब पढ़ने में नहीं जाएंगे, सब एमबीए नहीं करेंगे, Correct. Right. सब नहीं बैठेंगे जॉबलेस सब जॉबलेस नहीं बैठेंगे, है ना? तो वो नहीं होगी इंडिया में। तो यार यही हुआ हमारे साथ। वहाँ पे जब गए हम, वी प्लेड रियली वेल, वी हैड ऑफर्स, बट इंडिया में हमें उस टाइम पे चेन्नई एफसी से ऑफर आ गया था। Right. हमने बोला यार इससे बढ़िया एकेडमी से निकले, टॉप लीग अपने इंडिया में खेलने को मिल रहा है, तो हम खेलेंगे। एंड प्लस वहाँ पे ये हमें बहुत एक अच्छा भी एक खराब भी है कि वो लोग इंग्लिश ही नहीं बोलते थे। Right. तो हमारे साथ जो 2 प्लेयर गए थे, हमारी लगी क्लास वहाँ पे फ्रेंच की, वो बेचारे कह रहे यार हमने AFF एकेडमी में 5 साल पहले इंग्लिश सीखी, अब ये लोग हमें फ्रेंच सिखा रहे हैं, ये तो चल रही गलत। तो उन्होंने अपनी पढ़ रहे, और सिखाने सिखा दो, फ्रेंच तो हम नहीं सीख रहे क्योंकि 5 साल में इंग्लिश सीखी थोड़ी बहुत, अब तुम फ्रेंच सिखा रहे हो, ये गलत है। So can you speak French at all? No, we learned. So we like Bujo, आता था। Hey, but Anirudh, to be fair, even I did French for 2 years in college. I only know Jema play. Jema play, Which is also wrong. Which is also wrong. Which is also wrong. That sounds like you're asking a shopkeeper for gems in Gujarat. All right, Anirudh, I have a question. Like you've been part of one of the iconic squads of Indian football, which has drawn with Qatar at the World Cup. What World was Cup? the preparation going in? World Cup qualifiers. Sorry, qualifiers. देख भाई, मेरे लिए World Cup qualifier भी World Cup है, guys. Wait. Okay. So I'm very curious. Like, what's the like? You're going into that game as an underdog. Like, I mean, it's the Qatar team, right? Like, obviously. So what's the mental preparation? Like, what's happening? Dressing room में क्या बोला? मतलब, is it guys go do your best, or is it वापस आए तो फट के खाओगे? Like, like what's the and what's the preparation? Like, what's the tactical approach? How much of it is players saying नहीं कुछ भी हो ये तो जीतना ही है? Like, how you? So हमारा मैच था उससे पहले ओमान के साथ, and we were playing pretty good, but somehow we lost the game. Right. Last 10 minutes. 1-0 from what I remember, right? 2-1. 2-1. Yes. There was a 1 goal Somehow differential. Okay. We lost it, and fans ने बहुत सुनाया, जो कि जायज था कि भाई हारे हो, तुम अच्छा खेल रहे थे, लास्ट के 10 मिनट में क्या हो गया, you collapsed. Oh yeah. And we were also यार नहीं यार जीतने वाला गेम था, and उसके बाद जाना था हमें कतर, and प्रेशर था कि यार कतर तो किसी से नहीं हारी एशिया में, अभी खेल के आ रही है, वो अपना कोपा अमेरिका खेल के आई, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये तो आएंगे गोल, which was open कि ये गोल खा के आएंगे। तो अपने हो गई मीटिंग, हमको भाई देखो ये सीन है, सबने बोल दिया, सबने हाथ खड़े कर दिया, तुम नहीं कर सकते। अब तुम्हारे हाथ में देखो खोने के लिए तो कुछ है नहीं, अगर हम 4 गोल खाएंगे
तो उन्होंने बोलना है कि ये तो पता था हमें, Right. लेकिन अगर तुमने गलती से कुछ कर दिया तो फिर तुम्हें भी नहीं पता कि क्या होगा। गलती से। उसने सीधा बोला, मैं हाँ। उसने बोला देखो सबको पता है, ओपन सी बात है, कुछ छुपाने वाली बात नहीं, कतर है, चैंपियन है, और अभी भी रिसेंटली दे वन दी एशियन कप। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई ये तो ठीक है, इज्जत पे बात आ रखी है, अब क्या करें। तो हमने मीटिंग करी, देखा हमारे उनके मेन प्लेयर्स क्या है, कैसे खेल रहे हैं, और सब थे भैया जोश में। हमने बोला कि या तो आर या पार आज का गेम। ऊपर से आपके फेवरेट सुनील भाई, हाँ। उनकी हो गई तबीयत खराब, वो तो बाहर। अब हमने बोला चलो भाई ये भी बाहर, अब आगे तो देखते हैं अब क्या करना है। तो वो तबीयत ज्यादा खराब हुई, तो देन ही वाज लाइक कि गाइस नाउ यू हैव टू प्ले, और इज्जत पे थी भाई, इंडिया पे है। एंड देवर यू वोंट बिलीव द स्टेडियम वाज फुल पैक्ड, मोस्ट ऑफ देम वर इंडियन फैंस। Of course. मजा आया वहां खेलने में ना वाओ। भाई। आधे जब when the game finished, when we came out, there were Indian fans जिनको टिकट्स नहीं दी गई Wow. उस मैच में एंटर करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो स्टेडियम आधे से ज्यादा इंडियन फैंस से था। अच्छा। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब हम घुसे वहां पे, एटमॉस्फेयर देखा, तो जो मजा है ना देख के ही, उससे आधे सब प्लेयर्स आधा मोटिवेशन उनका और बढ़ चुका था। उन्होंने बोला भाई अब अपने लिए नहीं, अब इनके लिए करना है जो ये आए हैं। Right. बिकॉज मेनी प्लेयर्स न्यू कि भाई अगर हम यहाँ से कुछ करके जाएंगे तो इनकी ये सीना फाड़ के बोलेंगे कि भाई इंडिया आई थी, कतार के साथ ड्रॉ करके गई या Right. जीत के गई। एंड उसके बाद जो हमने पूरा अपनी जान लगाई, जैसे हमने जो भी किया, वी गिव आवर बेस्ट ऑन द फील्ड। हमने कहा जो बेइज्जती हो गई, भूल जाओ उसे, अब ये करना है हमने, ये मैच पे फोकस करो। एंड everyone, each and everyone give that 200%, और that's what that was the outcome। फैंस का सपोर्ट जो उस टाइम पे स्टेडियम पे थे, जो टीम जो हमारी थी उस टाइम पे, फैमिली जो थी, उनका जो सपोर्ट था, वही हमारा आउटकम है रिजल्ट का, जो ड्रॉ हुआ। एंड रियली प्राउड ऑफ इट कि भाई हाँ हमने कुछ किया है। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर इंडियन फुटबॉल, दैट यस वी कैन डू इफ वी प्ले टू आवर फुल पोटेंशियल। Right. Correct. Wow. And now when you Also, came back also in the एक second. sorry one हाँ. second. So like I'm saying it was a 0-0 draw. So was there like a mentality of defensive approach ki no, let's just play our best at all our positions? Because what happened when you came back at halftime and it was still 0-0? Because the assumption was ki yaar एक गोल तो खा लेंगे half time तक. That was what everybody thought, right? So how was that? Like did we go in defensively and then what happened at halftime? No, it was nothing like that कि हमें डिफेंस करना है या ऐसे करना है। We were pretty sorted कि भाई हमें अपना गेम खेलना है। If they are attacking, like 2 विंग आ रहे हैं या उनका फुल बैक ऊपर चढ़ रहा है, तो हमें पता है कि भाई कैसे डिफेंस करना है हमें। Right. ठीक है, और हमें ये भी पता था अटैक कैसे करना है। जस्ट दैट कि दे वर सुपीरियर, उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, उन्होंने बहुत मैचेस खेले हैं, उनका हाँ वो ज्यादा क्विक हो सकता है हमसे, उनका गेम प्ले थोड़ा अलग हो सकता है, बट वी नीड टू प्ले टू आवर स्ट्रैटेजी, टू आवर स्ट्रेंथ। फर्स्ट हाफ यस हमें कम चांसेस मिले, बट सेकेंड हाफ में जो हमें चांसेस मिले, जो हमने क्रिएट किए चांसेस, अगर वो गलती से हो जाता गोल, तो इट वुड बी टोटली डिफरेंट, वो मतलब अलग ही होता। और हमें चांसेस मिले थे क्योंकि हमने थोड़ा पुश किया, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे हम ऑब्वियसली और उस मैच में मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वर न्यू, जो मतलब नेशनल टीम में नए आए थे, नए सेटअप में थे, काफी यंग प्लेयर्स भी थे। तो वहां पर हमारा थोड़ा प्लान, जैसे हम सेकंड हाफ में गए, उन्होंने बोला वी हैव डन वन पार्ट, जो हमने किया वो अच्छा था, डिफेंडिंग वी डिड प्रीटी वेल, नाउ वी नीड टू मूव अप, हमें आगे बढ़ना है। तो वी ट्राइड दैट थोड़ा, हाँ हम कहीं सक्सेसफुल हुए, कभी नहीं हुए, बट इवेंचुअली एट द एंड जो हमारा स्ट्रेंथ था डिफेंस, वो हमने किया और हम जीते। Anirudh, you were talking about the impact that fans make in the stadium, ठीक है? And in this season there's going to be no fans, ठीक है? So what is the impact that has on a player, and are there strategies that you guys are doing to counter that? Like is there something the coaches are telling you ki how to deal with this situation? It would be totally different, fans नहीं होंगे। Yeah. और होम सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टीम के लिए। इफ दे अडैप्ट दैट, दे कैन चेंज द गेम एट एनी पॉइंट। वो कभी भी गेम चेंज कर सकता है अगर वो अपने होम में खेल रहे हैं और उनके पास होम सपोर्ट है। और इस साल जैसे ही फैंस नहीं होंगे तो बहुत अलग होगा
ऑब्वियसली बड़े स्टेडियम में खाली, तो यू नो हमें ये दिमाग में रखना है कि भाई लोग तो देख रहे हैं, स्टेडियम देख रहे हैं, इंस्टा में डीएम तो आएंगे आएंगे अच्छा खेलो चाहे गंदा खेलो आएंगे भाई, ठीक है। सन्नाटा, पूरा साइलेंस होगा स्टेडियम में, तो हमने कुछ गलत भी बोल दिया तो घर वालों की तो कॉल आ रहा है मैच के बाद सीधा। हाँ, बेंजिमा ने बोला ना अभी। But that also I wanted to ask, so fans का criticism, and obviously we are guilty of this, कि हम लोग ये watch along इसके बाद after we are done recording this हम लोग we are going to be watching Manchester United versus Arsenal, और हम बिंदास without any remorse we rip on players, मजाक उड़ाते हैं, गाली देते हैं, whatever, कि ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, all of that. And obviously now I want to know from a player, obviously you must be getting these kind of messages on social media with fans who think that, like us, who think that they know your job better than you. So how do you deal with that? नहीं काफी लोग होते हैं जो पढ़ते हैं मजे लेते हैं, काफी होते हैं जो रिप्लाई कर देते हैं, जानने वाले हैं, पता है मेरे को पता है कौन है, जान करते हैं रिप्लाई। आपने किया रिप्लाई? नहीं मैंने नहीं किया। नहीं किया। Nice. So I think it's the same thing that we do as comics, right? Correct. Like अगर कोई हमको ट्रोल करेगा तो हम या तो रिप्लाई करके थोड़ी उंगली करेंगे, या फिर हम देख के ऐसे एक चलना है यार and just move on with it. That's an interesting way to deal with a problem. Anirudh, one question I have, और ये funny है, इसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि you are colorblind. Correct. You are colorblind. So what colors are you what colors are you blind with? Like green, is yellow, there a particular orange. तो ये कलर जब भी ट्रेनिंग में हो जाए, चाहे फीफा खेल रहा हूँ, नहीं पता लगता। अच्छा आप फीफा खेलते हो? मेरे को दोनों चीज पे सवाल पूछना है। तो पहली बात on so when you're playing a team that is wearing say an orange or whatever it is, यार समझ में कैसे आएगा किसको पास कर रहे हो बॉल? उन्होंने रूल बनाया हुआ है कि भाई टोटली डिफरेंट होना चाहिए, कुछ भी मैच नहीं करना चाहिए। सीधी बात है भाई, देखो जब गेम में जा रहे हो बिल्कुल अलग होना चाहिए, किसी दोनों टीम का या रेफरी का भी एंड प्लस गोलकीपर का भी मैच नहीं करना चाहिए। करेक्ट। कंफ्यूज हो जाए क्या पता काहे के लिए रूल बनाया है, बट थैंकफुली मैं सेफ हूं उसमें। तो ये गेम में बट लिसन, इट वुड बी अमेजिंग इफ यू कंफ्यूज द गोलकीपर्स कि तुम उनके टीम में, अरे ये मेरा कीपर है क्या? Because he also does. So on FIFA when you're playing on FIFA, do you like, I have a problem on FIFA when I play, I have depth perception. तो कोई अगर एरियल बॉल डालता है तो कहाँ टप्पी गिरने वाली है बॉल ना, मेरे को नहीं समझ में आता है. So I have to wait till टप्पी गिरेगी बॉल. तो I'm saying, is there a problem with ये? You have a problem कि अगर opponent ने ऑरेंज कपड़े पहन लिए तो खत्म. ट्रेनिंग में होता है, ट्रेनिंग में आप उनके पास बेब्स ही ऐसा है, बेब देते हैं वो रोज देते हैं. मैं बोलता हूँ भाई मैं कलर ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं दिखेगा, मैं उनको रोज बोलता हूँ. एंड प्लस जिसको मैं बोलता हूँ वो है तमिल, ठीक है, एंड उसको मैं हिंदी में तो बता नहीं सकता, हिंदी में बोलता हूँ, उसको समझ में नहीं आता, हिंदी में देता हूँ गालियां इसलिए उसे. मैं बोलता हूँ भाई आई एम कलर ब्लाइंड, प्लीज चेंज द बिब. अब वो पता नहीं क्या उसको समझ में वो भी नहीं आता, मेरे को नहीं पता, लेकिन वो वही बिब से खिलाता है रोज. वो दोनों प्लेयर्स को ऑरेंज दे देता है. वो ऑरेंज ग्रीन है, वो भाई नहीं दिख रहा मुझे, मैं कैसे करूं. बट ही इज लाइक नहीं ऐसे कोच ने बोला है, मैंने चलो नहीं, क्या बोलूं मैं. तो येलो और रेड में प्रॉब्लम नहीं होता है ना? रेड इज समथिंग मेरे को थोड़ा दिख जाता है, बट अगर वो थोड़ा पास में आ जाए तब तो नहीं. बिकॉज आई एम आस्किंग भी कैसे रेफरी की कभी रेड कार्ड दे दे और आपको बोले कि अरे ये तो येलो ही दिया, चलो खेलते हैं. मैं बहुत बार हो चुका हूँ. एक मैच में हुआ भी है नॉर्थ ईस्ट के लास्ट सीजन, नॉर्थ ईस्ट के साथ चल रहा था लास्ट लीग का गेम. टैकल मारा, पेनल्टी हुआ, उसने काट दिया. मैं था हाफ लाइन के पास था, मैं खेल रहा था अटैकिंग, मैंने चलो पेनल्टी दे दी. थोड़ी देर बाद कोच कह रहा, गेम स्टार्ट हुआ कि थापा यू प्ले, मतलब पीछे डिफेंसिव खेल. मैं अटैकिंग खेल रहा था गेम में, उसने वहां पे जो विंगर था उसको फुल बैक कर दिया. चल क्या रहा गेम में. There's a whole player missing and थापा एक प्लेयर गायब है टीम से and he has no idea. थोड़ी देर बाद देखा कि एक प्लेयर तो है नहीं लेफ्ट बैक. मैंने भी खेल रहा था, मैंने पूछा भाई इसको रेड कार्ड हुआ क्या? वो कहता भाई उसको रेड कार्ड हुआ. मैंने अरे यार ये क्या था भयंकर.
और उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता, 5 to 7 मिनट्स ऊपर हो गए थे जब उसने मुझे बोला ना कि डिफेंसिव खेलो। मैंने ये क्या हो गया कोच को, अचानक से हम तो 3 खेल रहे थे, अब फॉर्मेशन क्यों चेंज कर रहा। मैंने बोला यार ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई, कुछ करना पड़ेगा। ये जो सिंपैथी नहीं है ना आपकी आंखों में, यही प्रॉब्लम है इसकी। So one second. I'm sorry for the plug, but you think this is a yellow card? No, the problem with color blindness is if they come closer together, that's Yes. when the Oh, No, that's so also I think Otherwise it's- also the problem with color blindness, Kautuk, is that you can still read words. It's so funny. But okay, no, I wanted to ask, you play FIFA, right? Yes. So how would you say, like, do other players in the team also play with you? Who's the best? Who's the worst? Do you play with your teammates also? Yes, we play. Teammates आ गए, staff आ गए, so जब भी फ्री टाइम होता है, they come, we play, we have a good time. अच्छा, तो मतलब आपके पास बबल में भी है PlayStation खेलने के लिए या? अच्छा, 100%. अरे तो खेलना चाहिए फिर. We should plan a FIFA stream also at some point. Who do you play with? डबल्स में फिर कलर का बड़ा, क्योंकि we play डबल्स, we जब ज्यादा प्लेयर रहते हैं हम खेलते हैं डबल्स। हाँ. और उसमें रेड येलो, मेरे को 2 ही कलर पता है उसमें, रेड होता है और एक होता है ब्लू। Blue, हाँ. तो हम दोनों एक ब्लू कर देते हैं। Wait, are you at the reception? नहीं. No, sir, we don't have a room. हाँ, तो खेल लेंगे Manchester United Chelsea. We should do that. Maybe we can add it as part of the show later if you all have time. We should do Neville and Azim versus Chennai and FC 2 players and see how badly we it'll be lose. correct. Depth perception Now, I versus have- color blindness. Hilarious. You have not revealed this, and so we are going to force you to reveal this part about yourself. Which is your favorite club? Apart from Chennai and FC. Yeah. No, पत्थर which रख is your के बोलना favorite? पड़ेगा मेरे को। हाँ. नहीं. मैनचेस्टर यूनाइटेड। Oh. Yeah. There we go. That's the jersey right there. GGMU. Superb. So what have you been feeling? How have you been feeling? पिछले कुछ सालों से not been a very good time for us as Manchester United fans. वही फैंस की तरह ही सोचते हैं, गालियां देते हैं, भाई कर क्या रहे हो, क्यों इसको साइन कर रहे हो, क्यों। Nice. Nice. होता है, but I like that professional footballers have the same feeling. Same reaction. That we as fans just have. भाई चल क्या रहा है, वो होता है, बट अब क्या करें, वहां भी सोचते हैं कुछ तो अच्छा करो प्लीज यार, यू आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, इतना तुम्हारा नाम है, डुबाओ मत यार। This is great. You will be a great addition to 442. That's damn. Oh, okay. I want to ask you this. I want to ask you this question. So the last season, right? You guys reached the final and then lost to ATK, right? Yeah. So how does it feel losing a final? Like how do you deal with that? Because it's your पूरा season का मेहनत और एक game में वो पिघल जाता है. So how does that feel like? Honestly, it's very heart breaking, you know, इतना मेहनत किया पूरा सीजन, प्लस फाइनल में आके हार गए, मतलब एक हाथ था ट्रॉफी में, वो भी चला गया। करेक्ट। बट पिछले सीजन ये हुआ कि हमारी मेहनत ही, मतलब स्टार्ट जो किया हमने बहुत ही बेकार किया। नीचे से शुरू किया, स्टार्ट में जीते नहीं, पता नहीं कितने मिनट, 700 कितने मिनट से गोल भी नहीं मारा, एक मैच नहीं जीते, 5-6 मैच हो गए जीते नहीं, तो हमने लगाया तो मेहनत तो मतलब हमने करी नहीं कुछ। Correct. यार कुछ इतना, सारी टीम गालियां भी दे रही, ऊपर से कह रही तुम तो ये हो वो हो, फैंस भी बेचारे पागल हो रहे। बट फैंस की ऑनेस्टली एक चीज अच्छी थी, वी विन वी लूज दे वर देयर सपोर्टिंग अस। नाइस। ठीक है, हम जब जीते दे वर देयर, जितना क्राउड आता था दे वर देयर, व्हेन वी वर लूजिंग स्टिल दे वर देयर, you know, till sixth match was the one when we won our first game. Wow. Yeah. उस टाइम तक वो थे। Right. ठीक है, हम बॉटम ऑफ द टेबल, हाफ फर्स्ट लेग सबका खत्म हो गया, बॉटम ऑफ द टेबल थे हम। एवरीवन थॉट, आता है भाई इंस्टा फेसबुक सब में आ रहा, सोशल मीडिया में, कि भाई 2% चांसेस ऑफ चेन्नई एफसी रीचिंग द नॉकआउट स्टेजेस। Wow. सबको लगा कि भाई ये तो नहीं पहुंच रहे, मतलब इट वाज टोटली नो।
नहीं, ऐसा हो गया था कि लास्ट के हमें अप्रॉक्स 7 मैचेस जीतने ही थे एंड वो टर्निंग पॉइंट आया, हम जीतते गए एंड वी समहाउ रीच द नॉकआउट स्टेज। तो उस टाइम पे लगा यार कि देखो मेहनत करी तो थी, हमें पता है कि हमने कैसे मेहनत करी, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे एंड स्ट्रीक बनाई हमने 7 मैचेस अनबीटन, वहां पे नॉकआउट स्टेजेस में भी पहुंचे, प्लस फैंस का सपोर्ट इतना, मतलब मजा आ रहा था ना देख के। फर्स्ट मैच एफसी गोवा के साथ, फर्स्ट सेमीफाइनल, फर्स्ट लेग का अपने होम में, जो मजा आया ना जब हम स्टेडियम में घुस रहे थे, पूरा क्राउड बाहर, स्टेडियम के बाहर एक बार ब्लू देन स्मोक लेके खड़ा हुआ कि भाई आज तो, वहां से हमारा मतलब हाई हो गए थे हम पूरा कि आज तो भैया आज इनको लेंगे हम, आज ये तो जाएंगे गोवा वाले। गोवा के साथ हमने 2 गेम खेले लीग के, दोनों हारे। फर्स्ट गेम 3-0 फर्स्ट लेग उनके होम में, सेकंड गेम में अपने होम में चल रहा था, वो भी हम 3-0 हारे थे फर्स्ट हाफ तक। वहां से हम, वही गेम था जो हम चार्ज हुए, वहां हमने किया 4-3 वो गेम हार गए बट 4-3 था। फ्रॉम देयर यू नो वी वन, वी लॉस्ट वन मोर गेम एंड फ्रॉम देयर वी वन 7 गेम्स, बीच में एक ड्रॉ हुआ बट 7 गेम्स कंटिन्यूस वी वर लाइक अनबीटन। सेमीफाइनल आया, फर्स्ट लेग, ग्राउंड मतलब पागल हो रहे थे फैंस भाई आज तो, क्योंकि जो उनकी एंट्री दी ना उन्होंने हमें, क्योंकि यार जब वार्म करने जाते तो फैंस मोस्टली नहीं होते, कभी कभी वार्म अप के टाइम मैच में आते हैं, उस टाइम पे वार्म अप छोड़ो, आप जब बस में घुस रहे थे स्टेडियम उन्होंने अपने चार्ज कर दिया उन्होंने कि भाई अब तो भूल जाओ, प्लेयर ने देना 100%। वो गेम हमने उनको 4 गोल मारे अपने होम में, एंड दैट वाज द थिंग कि भाई अब तो उनके होम में वो होगा जो होगा, बट हमने अपने लास्ट गेम होम का फैंस को खुश किया हमने। देन फाइनल गए, ऑब्वियसली हम प्रिपेयर्ड थे, बट फर्स्ट गेम वो भी था कि विदाउट फैंस, राइट। तो भाई काफी प्लेयर्स हैं भले बोलते हैं, गालियां निकालते हैं वो भी उस दिन चुप हो गए बेचारे, ऑनर्स था एक, वो बेचारे मतलब ज्यादा बोलते थे, तो बट वो भी उनको भी पता लगा कि भाई सुनेंगे तो थोड़ा देख के, एंड वी वर प्लेइंग रियली गुड, बट फर्स्ट 10 मिनट्स में 2 बार हमने पोस्ट हिट कर दिया। हमने बोला यार ये तो गलत हो गया। जैसे 13 मिनट आया, 14 मिनट उन्होंने मार दिया गोल। हमने बोला बताओ, उनका एक अटैक एक गोल, मजाक चल रहा है। बट वी वर प्लेइंग गुड एंड उन्होंने मतलब डिफेंस अच्छा किया एंड काउंटर में दे स्कोर्ड द गोल। तो वही उनकी स्ट्रैटेजी, उन्होंने अच्छा मतलब प्रिपेयर थे वो, और उन्होंने हमें कर दिया। बट उस टाइम पे हमें लगा कि यार हम खराब नहीं खेले, जो हमने सीजन किया वो बहुत अच्छा था, फेरी टेल सीजन था कि भाई कहाँ से हम कहाँ आए। एवरीवन वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अस कि भाई हम पहुंच जाएंगे, बट वी टर्न द टेबल, वी टर्न थिंग्स अराउंड, और वो हमें एक होप मिली कि भाई कुछ भी हो सकता है, अगर आप अपना पूरा दोगे, 100% दोगे, लास्ट मोमेंट तक कुछ भी हो सकता है। So I had 2 questions. So number 1, I think, correct me if I'm wrong, but last season आपका manager was Owen Coyle. हाँ जी, and he was I think a former Burnley manager, former Premier League manager before. So what is the experience working like with a Premier League manager, and तुम्हारा what was your tactical plan? कि are you or was Chennai FC under that manager a team that holds possession, तुम्हारा counter attack का होता था? Do you have a set plan for the game कि हमारा ये style होगा, a particular way of playing, or do you adapt every game accordingly? तो पहले तो we were like normally हर गेम को we were like कि टीम कैसे खेलती है, we were preparing like that. Right. He came in, atmosphere change. उन्होंने बोला बेटा तुम देखो ड्रॉ हो रहे हैं या हार रहे हो, गोल मार नहीं रहे, पहला था कि भाई गोल ही नहीं मार रहे तुमने हो, तो चलो अटैकिंग करो, फिनिशिंग शूटिंग ये करो, तुमने गोल ही नहीं मारे, तुम क्या लेके किस होप से जाओगे गेम में, गोल नहीं मारे तो वो तो बेचारे गोल खाएंगे, कितने गोल बचाएंगे। तो वी वर लाइक we started our first training with our attacking, finishing करनी, और वहां से जब हमने गोल स्टार्ट करे तो that was the thing कि भाई he changed the thing. He knew कि how we were performing in our last few matches. उनको पता था कि हमने भाई इतने टाइम से गोल नहीं मारा, वो he saw our every match, उसको था, तो उसने वही चेंज किया things and we were like कि भाई चलो आप अटैक करना है, और उसके आते ही we started scoring goals. Okay. Interesting. I have a question.
sorry, I have a question which is a काफी बेवकूफ सवाल है, लेकिन please just indulge me. You're a corner taker also, right? Yes. A lot of times, right? So no, Azim, my question is not intelligent. Don't get happy. It's a very dumb question. मेरा सवाल ये है कि you will have set pieces in your mind already prepared and planned, and you know you're going to attack the front post, whatever, rush the keeper, whatever. But यार ये सब कॉर्नर वाले ये करते हैं और सब समझ जाते हैं. We've spoken about this before also कि या तो ये करो या ये करो, हम लोग को कॉर्नर सेम ही लगता है. So I'm saying, सबका एक what plan is this code? What is this code? Like, is it like corner number 1 will be this, corner number 2 will be this, corner number 3? या जब भी मैं ये करूँ, know that it's going to be that set piece. Is it like, what is the? तो हर टीम का एक स्ट्रेटजी होता है. कोई करता है ये, या तो ये होगा फर्स्ट पोस्ट या सेकंड पोस्ट. सेम फर्स्ट पोस्ट सेकंड पोस्ट. ये हो गया तो they might put wide ball 18 यार्ड पे चिप. Oh, this is wide in football also. एक दोनों हाथ में एक. This is no ball. Oh, sorry. हाँ. So everyone is prepared कि हाँ भाई उनको पता है कि अगर हम सेकंड पोस्ट में डालेंगे तो वहां पे उनका छोटा प्लेयर खड़ा रहता है. Correct. फर्स्ट पोस्ट में डालेंगे तो ये होगा वी कैन फ्लिक. Correct. बट कोई होता है कि ये मतलब मैं लेने वाला हूँ कॉर्नर. जब तुम प्रिपेयर रहो, मैं ये कर दिया, तुम कॉर्नर लेने वाला हूँ, यू स्टार्ट योर रन, आई स्टार्ट माइन. Right. तो सबका वो स्ट्रेटजी रहता है. I have a couple of एक और what's the best dressing room you've been in? Like from a Stadium like and from a like stadium and thing, worst dressing room and best dressing room. Best one Worst is तो शायद FC bowling- Mets. FC Mets. FC Mets was good. Then Netherlands I went, Holland. Feyenoord was also good. उनका टनल था, it was like pretty good. मजा आ गया था देख के कि उनका जो ट्रॉफीज प्लस जो हिस्ट्री के थे. तो ड्रेसिंग रूम मोर और लेस सबके सेम होते हैं, जस्ट दैट कि उनका इंटीरियर स्टेडियम का उन्होंने कैसे रखा है. जैसे फेनॉर्ड का है कि भाई उन्होंने बना रखा है कि हिस्ट्री हमारे ये प्लेयर्स थे, ये लेजेंड्स थे, अपना वहां पर है. इंडिया के स्टेडियम में आओ आप, आज चल रहा है फुटबॉल, कल चलेगा कुछ और. आपको वहां कुछ नहीं पता लगेगा कि भैया यार था क्या. वहां का है कि भाई आप प्रॉपर फुटबॉल स्टेडियम है. आप जब भी आओ साल भर में आपको यही चीज दिखेगी. right. अब आपको अगर आप यू कम टू चेन्नई और वेदर एनी स्टेट, कोई भी फुटबॉल स्टेडियम में, यू विल सिर्फ सीजन के टाइम पे आपको दिखेगा वो चीज. Correct. बाकी टाइम गरबा चल रहा है. I also read this that the first time you came on, you scored a goal, but वो own goal दिया गया. Your first goal. How does that feel? पता है, मैं खुश, मैंने बोला यार डेब्यू में गोल मार दिया, सब खुश. वापस आए होटल में, उन्होंने मेरे को फेंका पूल में, सब कुछ करने के बाद कह रहे भाई वो तो ओन गोल दे दिया. मैंने बोला यार बताओ, सब कुछ कर दिया तुमने इतना सब, उसके बाद बता रहे ओन गोल है. तो दैट वाज आई वाज डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम. यार डेब्यू में ओन गोल मिल गया मेरे को, बट स्टिल ठीक है. इट वाज गुड एक्सपीरियंस फॉर मी गोवा में. और उससे पहले ही मेरा ये था कि फाइनल मैंने चेन्नई और गोवा का देखा था उसी स्टेडियम में, ऊपर फैंस बैठ के. और ये बात काफ़ी कम लोगों को पता है कि मैं वहीं पे एफ अकेडमी में था, और काफ़ी प्लेयर्स लोग भी थे, दोस्त लोग, और कुछ लोगों ने मार भी खाई थी क्योंकि हम चेन्नई को सपोर्ट कर रहे थे. और हम भाग गए थे स्टेडियम से आधे में. तो वो एक एक्सपीरियंस था. नेक्स्ट ईयर ही हमने 3-4 प्लेयर ने चेन्नई साइन किया. तो पवाड़ वाला सीन हो गया कि भाई मैच देख स्टेडियम में, नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. वो भी एक ड्रीम तो सोचा नहीं था कि खेलूंगा चेन्नई एफसी से, बट स्टिल कहीं ना कहीं मेहनत रंग ला ही गई मेरी. Also, your Chennaiin owners are Abhishek Bachchan and MS Dhoni. MS Dhoni is also the unofficial sports mascot of Chennai. So, how does it feel playing for them? Like what are they like? Do you interact with them, or Yes. have you interacted with them quite a bit? Yes, we have, like, obviously it's proud moment कि भाई धोनी is there, he is the Thalaiva of Chennai. Correct. God. So he's Thala, so you can't say anything. But जब भी वो आते हैं, we have a team lunch, वो मैचेस देखने आते हैं. And plus I think he's going to come for more matches now. Huh?
डबल नो वन ऑब्वियसली ओनर के नाम पे आ सकते हैं, बट लेट्स सी। एंड तो यार काफी अच्छा लगा मेरे को जब मैं उनसे मिला, बात बूत करी। ऐसा नहीं है कि यार बहुत बड़ा आदमी, नहीं, बैठा अपना एक्सपीरियंस बताया कि क्या क्या करते थे, ठीक है। देन ही वाज लाइक कि डिसिप्लिन बताने लगे कि जर्नी के बारे में, उनकी जर्नी कैसी रही, उनका मतलब कैसे वो मतलब इतने बड़े प्लेयर बने, ऑब्वियसली चेंजेस क्या क्या उन्होंने चेंज किया, हमें कैसे रहना चाहिए एज अ प्रोफेशनल प्लेयर। Can you give us one of the biggest tips he's given you? Like one of the best advice he gave you? So best advice was like he was just talking, we were listening. अब यार मेरा ये रहता है कि कोई बड़ा आदमी है ना, भाड़ में जाए क्या बोल रहा, भाई देखते रहो उसे। तो फोटो बाद में होती रहेगी, ऑटोग्राफ बाद में होता रहेगा, ये बार बार मौका नहीं मिल रहा कि उसको भाई देखो कि मतलब कैसा बंदा है यार, वो बात कर रहा लोगों से, कैसा उसका नेचर है। तो मेरा आई डोंट नो कि मेरे साथ हुआ है काफी बार, मैं जितनी बार मिला हूँ। आई वॉज इन फ्रांस का टीम था वहां पर, एंड दे प्लेड अ मैच, फ्रेंडली मैच स्कॉटलैंड के साथ। वी हैड अर अपॉर्चुनिटी कि हम जाके मिल सकते थे, फोटो सब कर सकते थे। बट मैं वहां से उनको बस देख रहा था ट्रेनिंग करते हुए कि वो क्या कर रहे हैं यार, मतलब इतने बड़े प्लेयर की हाउ दे आर बिहेविंग विद एवरीवन, कैसे रहते हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो एक मेरे साथ, अब अच्छा है बुरा है मेरे को भी नहीं पता, बट मुझे ये चीज पसंद है। तो उनके साथ में देख रहा था, तो वन ऑफ अस ने, किसी ने बोला कि यार यू नो कि ही इज रियली एग्रेसिव, ये मार देता है प्लेयरों को। यंग प्लेयर था, तो कोच ने बोला कि यार ही इज वेरी एग्रेसिव, कार्ड्स बहुत लेता है, रेड कार्ड लेता है, लड़ने लग जाता है। तो MS सेड लाइक कोई फायदा नहीं है, 2 मिनट का गुस्सा है वो। अगर आप वो चीज काम करके उस सिचुएशन को अगर आप हैंडल कर सको, तो यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन इफ यू कैन कंट्रोल योर टेम्पर। भाई गुस्सा एक है, 2 सेकंड का है, वो मार दिया, रेड कार्ड हो गया, तुम बाहर चले गए, कुछ फायदा नहीं है, टीम नुकसान में आ गई। बट यू कैन कंट्रोल दैट, आप एक अच्छे इंसान भी बनोगे और अच्छे टीम प्लेयर भी बनोगे। तो ही वाज लाइक, यही चीजें थी जो यार मतलब अच्छा लगा सुन के। एंड प्लस ये मुझे नहीं पता, There's anyone who can give you that advice, it is Dhoni. To calm down. कैप्टन कूल। एंड प्लस मुझे पता नहीं कि ज्यादा लोगों को पता है कि नहीं, बट जब वो मैच देखने आया, जब मैं था टीम में, जब वो मैच देखने आया, हम कभी जीते नहीं। But Abhishek and Dhoni are both hands-on with the team. Are they both, Abhishek and Dhoni, are they hands-on with the team, or they sort of just like let you do your thing? Let you do your thing. Not like that. They come, बात करते हैं। It's not like कि यार तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं। Right. It's not like that, nothing like that. Abhishek is there every last season तक, वो हर मैच से पहले आते थे, रहते थे, बात करना सबसे कि कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम कुछ भी। लास्ट मैच जब मैच देखा है तो बोलेगा कि यस यू प्लेड वेल, ये हुआ, ठीक था। बट इट्स नॉट लाइक कि ये करना चाहिए, बिकॉज ही नोज कि भाई व्हाट हिज जॉब इज, ही इज डूइंग दैट, जो जॉब है वो कर रहा है। बट ही इज वेरी फ्रेंडली, वेरी चिल, मजाक करते हैं। एंड सबके साथ मतलब ऐसा नहीं है कि सबके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, मजा आता है जब भी वो आते हैं। उनको एक मैसेज कर दो that we want them, so वो तो मेरे से मैं तो नहीं कर पाऊंगा, वो तो किसी को, अखिल भाई को ही बोलना पड़ेगा। वो चालू है बात। हाँ, sorry Kautuk, what was I asking in your opinion? No, I was just going to say that Neville is only asking about Abhishek and MS only because he wants to know if they are like Abramovich. Okay, because क्या वो 3 लॉस के बाद मैनेजर चेंज करते हैं कि नहीं? No, so with Mohan Bagan, East Bengal now in the league's like sort of gets a little more competitive. The biggest, most historical rivalry of Indian football also now. How is that? Like, are you excited to play both those teams? क्या, what's the? बहुत मजा आएगा। इस साल तो कह नहीं सकते, ऑब्वियसली बाहर लड़ाइयाँ हो सकती है, मैं जाऊँ बाहर लड़ेंगे वो, लेकिन जो स्टेडियम में मजा आता है ना, वो अलग ही है। जब देखते हो आप, एक साइड पूरा येलो हो रखा है, एक साइड ग्रीन, वो अलग ही फीलिंग है, क्योंकि उनका स्टेडियम एक तो मैसिव, फैंस पागल हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली इस साल फैंस नहीं होंगे तो वो मजा नहीं आएगा स्टेडियम में। बाहर उनकी ऑब्वियसली वो चलेगा, सोशल मीडिया में चलेगा उनका झगड़ा, बट जो स्टेडियम में मजा है ना, वो अलग ही मजा है, वो अलग है। Correct. We say the same thing about. So that's the thing. So this is the only one interesting fact and trivia that I know myself about Indian football, which is that कि because of in the Kolkata derby, Mohan Bagan and East Bengal जो proper true fans होते हैं,
they are such true fans कि both sets of fans अलग type का fish खाते हैं. I don't know if you're aware of this. That the Mohan Bagan fans will eat one kind of fish and will refuse to eat the other kind of fish. Wow. It's actually true. It's also because it's actually Bangladesh, and so it's that rivalry, right? It's the Ghotis versus the Banglas, right? That's the real rivalry. So that's where it's coming from, which is why it's a big rivalry that Culinary sort of debate. exists. We can almost consider you like a senior player and an icon, like, you know, an icon kind of player, somebody who's influential in the dressing room and you know, that kind of thing. This responsibility that sort of comes, like, what all does it come with? Like, does it, apart from obviously being, you know, motivating the younger team member, what else is the pressure? Like do they all look up to you कि भाई कुछ नहीं हो रहा, आप गोल मार दो बस? Like what is the what क्या है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सीनियर प्लेयर के पास आती है? सीनियर प्लेयर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो ऑन एंड ऑफ द फील्ड क्या कर रहा है. अगर आप किसी को भी बड़े प्लेयर को ले लो, चलो मेरा एग्जांपल है कि इफ पीपल आर लुकिंग एट मी, तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं मजे कर रहा हूँ, मैं पार्टी जा रहा हूँ. तो जो यंग प्लेयर आ रहा है वो क्या सीखेगा? भाई ये तो मजे कर रहा है, वो तो कुछ सीख ही नहीं रहा है, वो तो देख रहा है ना कि तो भाई मजे कर रहा है, इज नॉट सीरियस. ऑब्वियसली पार्टी ये सब चलता रहेगा, बाद में होता रहेगा ये, ठीक है, फन जो भी है ठीक है, बट व्हाट आई एम डूइंग ऑन एंड ऑफ द फील्ड, मैं खा कैसे रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ मैं, Which is my question. खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी का ख्याल रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ, मैं टाइम पे सो रहा हूँ कि नहीं सो रहा हूँ. These things matter क्योंकि we need to perform every day 100%. ठीक है, टॉप लेवल में हमें परफॉर्म करना है रोज. ऐसा एक दिन अगर हम बैठ गए, गलती से मान लो मैं रात को पार्टी गया, अगले दिन सुबह ट्रेनिंग, मैं हो गया इंजर्ड, नेक्स्ट प्लेयर माइट कम, ही माइट परफॉर्म वेरी वेल, मैं तो गया, एंड अगले साल नो वन विल गिव मी द कॉन्ट्रैक्ट, कोई मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा. सो ऑब्वियसली ये सब चीज दिखाना नहीं है, मेरे को खुद के लिए भी करना है. ऑब्वियसली मेरा ये है कि आई एम रियली हैप्पी, रियली कंफर्टेबल विद एवरी प्लेयर. स्टाफ के साथ मैं मजाक करता हूँ, वो मेरा नेचर है. एंड इफ ठीक है, कोई होता है कि ही इज वेरी सीरियस रहता है, दूसरे लोग नहीं करते, उनका वो अलग है, दैट इज माई पर्सनल, ठीक है, वो मैं क्या कर रहा हूँ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ सीरियस आई एम टुवर्ड्स फुटबॉल, जो मेरा लाइफ है, जो मेरा पैशन, जो मैं करियर एक मैंने लिया है, हाउ सीरियस आई एम ऑन फील्ड में, क्या कर रहा हूँ. मैं गलतियां कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे भी गलतियां करेंगे, कोई भी गलती कर सकता है. क्या मैं उनको गालियां दे रहा हूँ, या मैं उनको एनकरेज कर रहा हूँ कि भाई गलतियां होंगी, बट यू नीड टू स्टे फोकस्ड, और वो फिर से करो. गलतियां होंगी, तुम ही सीखोगे, वो मैं नहीं सिखा पाऊंगा. यू नीड टू लर्न इट फ्रॉम दैट. So these are the things, how these young players look up to any of the senior players or foreigners, और जो भी जो experienced है, उनको देखते हैं. यही चीजें वही आगे जाके वही यूथ के साथ करेंगे, वही जो नया उनके साथ करेंगे वो लोग. Anirudh, you and I have one thing in common, huh? We both don't go to parties. The only difference is मेरे को कोई बुलाता नहीं है, but it's the same thing. Even I don't. I don't think all three of us don't. Never. All three of us don't go to parties. So which is why we're dedicated to football. Anirudh, when was the last time you cheated on your diet and ate a McDonald's and ate a burger or something like a pizza or like extra? कल ही खाया ये मत बोल देना, अनिरुद्ध बहुत दुखी हो जाएंगे अब. नहीं पाव भाजी. Honestly, मेरा ये सीजन ना, जब ऑफ सीजन था, मेरे घर में मेरे डैड लेके आते स्वीट्स. देहरादून की मिठाइयाँ हैं, एक स्वीट शॉप है, बंगाली स्वीट शॉप, वहाँ के एक पेड़े हैं जो मुझे लगते हैं बहुत पसंद, अच्छे हैं, ठीक है. एंड प्लस मैंने वो खाए नहीं, मतलब नहीं, लॉकडाउन है, ट्रेनिंग नहीं होगी, मैं नहीं खाऊंगा. नहीं तो ऑनेस्टली किलो के डब्बे आते हैं, हफ्ते में खत्म, और सिर्फ मेरे लिए आते हैं वो, ठीक है. बट ये मैंने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि भाई ट्रेनिंग नहीं होगी, जो भी घर का नॉर्मल खाना है मैं वो खाऊंगा. Correct. Otherwise, I will come like Eden Hazard to the. Oh yeah. अरे thank God. Anirudh, ये Eden Hazard कभी मत बनना प्लीज. ये हुआ, मैंने नहीं खाया, फिर वहां पे हमारी जगह में हो गया लॉकडाउन स्टार्ट, मतलब खुलना हो गया, तो खत्म हो गया वहां पे, क्योंकि वायरस इज लेस वहां पे, इतना इफेक्ट नहीं लोगों को. तो मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया. तो एक मेरा दोस्त है, वो खेलता है फुटबॉल,
बट प्रोफेशनल नहीं है, बट वो खेलता है फन के लिए। तो एंड ही इज फूडी, उसको फूड पसंद है, तो वो लेके गया मेरे को, कहता कि चल खाते हैं। पहले उसने स्टार्ट किया साइकिलिंग से। हमने साइकिलिंग जाएंगे ऊपर पहाड़ में, मसूरी वहां से हम करके आए साइकिलिंग, 1 दिन 2 दिन। तीसरे दिन से यार कुछ पीते हैं यार, पसीना निकला इतना, शिकंजी पीते हैं, नींबू पानी। नहीं यार बाहर का है, वायरस चल रहा है, नहीं अभी नहीं पीते, बाद में कभी पियेंगे। कह रहा नहीं पीते हैं। मैंने चल पीते हैं, ठीक है। स्टार्ट हुआ 1 दिन, 1 गिलास से स्टार्ट हुआ, 2 गिलास पे आए, लास्ट के मेरा 2 हफ्ते बाहर चल रहा, खाना पीना ये वो। मैंने उसको निकाली गालियां। मैंने भाई देख तूने मेरे को, और वो पता है कैसे बोलता है, नहीं सच है भाई, एक बार टेस्ट करके देखना, अच्छा है भाई, एक बार टेस्ट करके देखना, अच्छा है। अनिरुद्ध ये क्लासिक peer pressure है, क्लासिक। तेरे टेस्ट के चक्कर में मैंने तब से मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ, और मेरा तब से लास्ट 2 वीक्स मैं बाहर का खाया, बट उसके साथ फिर मैंने वर्कआउट भी डबल किया, तो थोड़ा भी ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हेल्दी चल रहा है अपना। You know the problem with Hazard is that you have only one friend, he has 7 of these guys. और वो सारे साथ में मिलके, अरे एक बार ट्राई करना, टेस्ट करना, अरे शर्म आ रही है, ट्रेनिंग जा रहे हैं, छोड़ दो ये सब। So in case you haven't figured out, Kautuk Real Madrid fan है। Okay, I had 2 quick questions to ask. Number 1, who is the best player you have ever played with? Yes. In India, In your life. Anywhere in the world, in your life. so यार काफी प्लेयर्स थे, बट इंडिया में मैंने देखा हांस मुल्डर था, राफेल क्रिवेलारो है दिस सीजन, राफेल अगुस्टो था। सो दीज वर द लाइक प्लेयर्स कि भाई मजा आया इनके साथ खेल के मेरे को, और सीखने को भी बहुत मिला। Augusto has left Chennai, you know, this season. Yes. So are you going to miss him? How are you coping with that? Like what is the strategy? प्लेयर्स अभी थोड़ी बताएगा कौतुक। हाँ सही बात है, sorry ग्राउंड में निकलेगी। अब क्या कौतुक, मैं ईस्ट बंगाल के लिए पूछ रहा था। करेक्ट। तू एग्जाम आया नहीं, तेरे को क्वेश्चन पेपर चाहिए, थोड़ी चलेगा। मैं सोचा ऐसे मस्ती में पूछ लूंगा और आ जाएगा आंसर। And then फिर sports कीड़ा लिखेगा आर्टिकल, like the tactics have been revealed. कल को कोच बोलेगा बेटा तू आ जा पहले, इंटरव्यू है ना देने का, आ जाओ तुम आ जाओ। Okay, also best, so have you played football with like जैसे ये celebrity classico type के जो matches होते हैं with actors, other sports people who play football, जैसे MS plays football, so in those kind of players, who is the best non-professional football player you've seen? I haven't played. I have मतलब राघव जुयाल है, he is from my place, so he plays with us and he's like कि भाई आज तो खेलना है, जीतना है। तो एक इंसिडेंट है ऐसे ही हुआ था थोड़े दिन पहले ही, ये लॉकडाउन में ही। सो ही हैज हिज फ्रेंड्स, तो उन्होंने बोला कि यार इनसे जीते नहीं गेम, इनसे गेम जीतना है, कुछ भी हो जाए गेम जीतना है, इनसे हार रहे हम 2 गेम जो खेले हारे, जीतना है। ये कौन से फ्रेंड्स हैं उसके? ये उसके क्लोज फ्रेंड्स अच्छा, बस फ्रेंड्स का ग्रुप। हाँ, क्लोज सर्कल के फ्रेंड्स है सारे, देहरादून के हैं मोस्टली, सब देहरादून से। तो हमने बोला ठीक है यार खेलना पड़ेगा। उसके डैड भी आ गए, कह रहे यार प्लीज जिता दो इन्हें, ये तो बैंकर हार रहे, नाम क्या कर रहे। ये तो फुल अनफेयर है, लेकिन लाइक इट्स लाइक अजीम इज लाइक अच्छा सुन अनिरुद्ध प्लीज जस्ट 2 फ्री किक्स टेक नो प्लीज। नहीं ठीक है चलो खेलते हैं। तो खेल रहे थे गेम एंड ही वाज लाइक कि भाई प्रिपेयर्ड, फुल शिन पैड स्टॉकिंग्स पहन के रेडी है भाई, स्ट्रेचिंग कर रहा, कह रहा भाई मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। मतलब ये स्ट्रेचिंग करो, ठीक है रेडी भाई, एकदम स्ट्रेच। गेम चल रहा, वी वर विनिंग, भाई को मतलब गोल मिले, ओपन चांसेस मिले, नहीं हुआ, छोड़ दिया। चलो ठीक है। एंड ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। वर्नर आपके दोस्त के टीम में खेलते? ओके तो ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन हिज स्कूल डेज। तो एक इंसिडेंट हुआ ऐसे ही कि ना हेड मारा, पोस्ट पे लगी और ही मतलब गोल मारने लगा, गिर गया वहां पर। गिर के हमने लगा एक्टिंग कर रहा होगा, यार ये तो एक्टर है बड़ा, एक्टिंग कर रहा, और वो रो रहा मतलब गंदा। और वीवर हम सर्कल बना लिया, हम खड़े होके देख रहे, मैं अब खड़ा होगा भाई, अब खड़ा होगा भाई, खड़े हो जा, गेम चालू करना है। रो रहा है, लोग कह रहे हैं खड़ा हो यार जल्दी। एंड लिटरली
उसका नी गया अरे उस टाइम पे नी थोड़ा उसका प्रॉब्लम हो गया वहां पर, और उस टाइम पे हमें पता नहीं लगा कि भाई चल क्या रहा है ये, भाई इसके लगी है कि एक्टिंग कर रहा है, बट समहाउ हम वो गेम जीत गए। बट वो टाइम पे ये था कि हाँ ही प्लेज फुटबॉल, ये उसको पता है फुटबॉल, और फन था। अच्छा हमें ये उस टाइम ये भी नहीं पता लगा कि भाई वो एक्टिंग कर रहा है कि वो रियलिटी में उसके चोट लगी। हम उस टाइम पे मतलब 10-15 मिनट आराम से मजे कर रहे हैं कि भाई अब खड़े हो जा, गेम चले चालू अरे नेमार उठ जा नेमार। क्या करते हैं वहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके थोड़ा प्रॉब्लम हो गया फिर। just one final question, Anirudh, and I think it's the standard typical question that you are asked a lot, which is that where do you see the future of football of India going sort of in the next 10 years, and would you, so also a lot of people are very interested in football. I think a lot of young people know and have friends जो football बहुत अच्छा खेलते हैं but are maybe afraid to pursue it as a career. So what advice, what words would you have for those people? भाई 10 साल पहले तक मुझे भी नहीं लगा था फुटबॉल इतना अच्छा होगा, ऑनेस्टली। तो मैंने स्टार्ट किया, आई नेवर थॉट कि भाई करियर है, बट नाउ विद इन 10 years 2010 to 2020 दिस डेकेड, भाई इट इज रियली गुड, it is going up, the players are coming in so much, so many young players are coming in career wise really good, if you can play to your highest level, जो भी आपका एज जहाँ तक आप खेल सकते हो, तो इट इज़ अ गुड करियर ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। फैंस आर कमिंग इन, ठीक है, देन पूरा नाउ प्लेयर्स, सो मेनी प्लेयर्स आर देयर कि एक टाइम पे अब ऐसा होगा कि भाई देयर इज कंपटीशन, वेदर इट्स इन द क्लब और वेदर इट्स नेशनल टीम, देयर इज कंपटीशन। सो इन दिस नेक्स्ट 10 years फुटबॉल बढ़ने वाला है, और कुछ ज़्यादा ही जल्दी बढ़ेगा जितना मुझे लगता है, क्योंकि जो हम अंदर से देख रहे हैं, जो कंपटीशन मिल रहा है हमें ना, वो बहुत ज़्यादा मैसिव है। और जो भी अब फ्यूचर में हो रहा है, जितना ग्रोथ हो रहा है, जितना जो लोग हैं जिनको इंडियन फुटबॉल के बारे में नहीं पता, वो भी अब जान रहे हैं इसको कि भाई इंडियन फुटबॉल क्या चीज़ है, कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि जो वर्ल्ड में वो देख रहे हैं फुटबॉल, जो भी फैंस हैं उनको पता लग रहा है कि भाई इंडियन में लीग चल रही है और ये बहुत इम्प्रूव कर रही है, क्योंकि जो IPL है, ऑब्वियसली IPL है, कबड्डी चल रहा है, बैडमिंटन है, नाउ फुटबॉल इज कमिंग अप, ISL इज कमिंग अप, एंड देन वी हैव AFC चैंपियंस लीग इज कमिंग अप, जो जैसे चैंपियंस लीग है, यूरोपा लीग है, वो अब इंडिया भी खेल रही है दिस सीजन। नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली 21 में FC गोवा इज प्लेइंग द AFC चैंपियंस लीग, जो अपना यूरोप का चैंपियंस लीग होता है, AFC is playing the AFC Cup, which is the Europa Cup. So these things are coming in. Many players obviously they won't know, जो भी लोग हैं, जो फैंस देखते हैं, उनको नहीं पता कि भाई AFC चैंपियंस लीग क्या है, AFC कप क्या है, बट थिंग्स आर चेंजिंग, टीम्स अब हमें एंट्री मिल रही है वहां पर भी। तो ये जो स्टेप बढ़ रहे हैं हम, वेदर इट्स एशियन फुटबॉल में हम बढ़ रहे हैं, तो ये डोमेस्टिकली भी बढ़ेगा फुटबॉल, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और बाहर से कोचेस आ रहे हैं। रॉबी फाउलर हैज कम इन, इतना बड़ा प्लेयर, वो आ रहा है कोचिंग करने। तो दीज थिंग्स आर चेंजिंग, पीपल आर गेटिंग उनको पता लग रहा है कि भाई हाँ फुटबॉल में बढ़ रहा है, फुटबॉल बढ़ रहा है इंडिया में, क्योंकि जब ये नाम, these names are coming into Indian football, obviously people are getting to know हाँ भाई बहुत कुछ है इंडिया में। तो these things, these small things obviously take changes, यही चीज बढ़ाएंगे इंडियन फुटबॉल को। फैंस आएंगे, जैसे ही फैंस आने लग गए, यहाँ का फुटबॉल भी बढ़ जाएगा पूरा, क्योंकि अगर आप देखो वेजेस वाइज, इंडियन फुटबॉल इज in the top 3 in Asia. That's why Australian players are coming in. Right. Mumbai City ने Tottenham से players sign किया है. These players are coming in. Why? Because it is growing. And in these 10 years, it will obviously grow. Just that कि हाँ लोगों को aware करना है, जितना हम कर सकें, जितना हम young players ला सकें, वो करना है, so that कि हाँ हमारे पास एक job opportunity रहे players के पास, कि हाँ भाई हाँ ये भी है, and plus we have a squad to play for the national team to represent country in high level. Correct. So that's I think that's the main takeaway for everyone who's watching. We are all guilty of it. We don't follow enough Indian football, and the more we do it, I think the faster we'll be able to accelerate not just the Indian leagues and the ISL, but also our progress as a national team. And our progress towards the eventual aim of making it to a World Cup.
So yeah, and with that in mind, please start following the ISL, which is starting on the 20th. 20th. आपका first game किसके साथ है? We have with Jamshedpur, the Nice. ex-coach Owen Coyle. Oh, nice. So you know the tactics, no, basically. Yeah, but he also knows the players. Gosh. Superb. Okay, brilliant. Thank you so much. He knows अगर येलो कार्ड दिला दिया या रेड कार्ड दिला दिया, थापा को पता नहीं है पता ही 6 नहीं। मिनट के लिए कि एक प्लेयर मिसिंग है, देखो जो करना है तभी गोल मारते हैं। So, yeah. Brilliant. Okay, thank you so Thank you much, so much, Anirudh. Anirudh. Thank you so for much. doing this. So much fun. And all the best for the upcoming season. Also, please be safe, take care, and have a great season. And you're doing Thank all you. of us proud at the national level as well. So thank you so much. Thank you so much. Thank you. Chalo. Cool. We'll try to be less mean on social media. Yes. As fans, yeah. Cool. And yeah, all right. that was it. Thank you for watching 4. 4. 2.